Welcome to the BCS Codex, your one stop podcast for anything and everything human. This is episode 1, How to Get Hired in Tech. Hi guys, so welcome back to the BCS Codex. This would be episode 1 where I want to start off things with an important topic. It's 2024, सब लोग जॉब्स में लगे हुए प्लेसमेंट्स के केस में टेक्नोलॉजी में जाना है सबको. So I thought let's get started with how to get hired in tech. It's a big topic. I'm taking off, starting off at BCS Codex, and it's an important topic because you see, कितना भी education ले लो, whatever degrees you get from any IIT, NIT, any tier 2, tier 3 college, there's a lot of things still missing out in the whole tech recruitment sector, and usko samajhna, I think, how do get people hired, क्या उसके पीछे क्या processes चलते हैं. I want to talk about that in this episode, to start off BCS Codex. Um, and of course, I'm sure some people are also listening this on Spotify. So for them, well, you have this show on Spotify as well. There would be less visual cues, and whenever there is, well, I'm gonna make sure that the context is explained in Spotify, so you wouldn't need a video source for that. Right. So first off, I want to talk about the global hiring scene. So India ke alawa, obviously, if you talk about the whole globe, so 34 to 36% USA has the highest demand supply gap as of 2023, followed by UK at 30 to 32%. So जो पूरा tech sector का supply gap है, it's quite big. Even with all the major job titles, attracting lots of salaries, good benefits, even with all of that, even with all the technology around us, बहुत बड़ा supply gap globally measure किया गया है. And India and China exhibit the highest rescalability index. So what rescalability tells you is कि अगर आपके पास कोई employees हैं and आपको उन employees को reskill करवाना है on a new technology, or let's say you have these traditional machine learning engineers at your site, at your office, and आप generative adversarial networks की बात करते हैं, so नया नया concept आया है. They would want their employees to be reskilled on that exact thing, ताकि जो अब नई रिक्वायरमेंट्स आ रही इंडस्ट्री की वो पूरी हो पाए. So India and China are doing some good work in that. And also इंडिया की एक और बात, इंडिया has the lowest tech talent demand supply gap at 25% to 27%. ये एक चीज़, इंडिया, इसलिए मैं इंडिया की स्पेसिफिकली बात करूँगा, वेल बिकॉज आई एम एन इंडियन, ऑफ कोर्स आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इंडिया. But more importantly, India is an important player in the tech industry as we're moving towards the 2030, the year 2030. तो अगले जो 6 साल होने वाले इंडिया के टेक सेक्टर में, इट्स गोइंग टू बी वेरी influential on the entire global sector. एंड हमारे पास जो सर्टेन इकोनॉमिक्स भरी है आईटी की, टेक सेक्टर की, वो आउट ऑफ द लेवल है. हमारे पास बहुत शानदार, मतलब, लाइक आई एम गोना टॉक अबाउट दैट, व्हाट्स द entire economics behind that. Moving on to our Indian hiring scene. इंडिया की हायरिंग की अगर मैं बात करूँ, सो आई हैव अ लॉट ऑफ स्टैट्स ओवर हियर ऑन माय मॉनिटर. I'm just going to read them. India as of 2023, and the data all comes from NASSCOM, and NASSCOM is this huge, sort of like this coalition between software companies that are listed on the stock market, on the Indian stock market. And NASSCOM का काम होता है कि बताना कि टेक इंडस्ट्री या आईटी इंडस्ट्री में क्या स्टेटिस्टिक्स रहे, क्या चेंजेस आए, क्या चेंजेस नहीं आए. So India currently employs over 5.4 million people. अगर मैं इसको लाइक नंबर्स के टर्म्स में बोलूँ, इंडियन सिस्टम के टर्म्स में बोलूँ, so that would be 54 lakh people. That is a lot of people. For us, it's nothing. For us, it's nothing at all. But 54 lakh people getting employed from companies, it's a huge amount. It's a huge amount. Even if you talk about TCS has tens of thousands of employees, and this is India's biggest IT company, biggest tech consultancy company, and even they can't match 54 lakh. That's a big number. That's a really big number. And so that's around 36 to 38% of the industry's workforce, meaning India.
has one third of a section in the global IT supply graph, if I say it that way. So, AI and big data analytics and IoT were the top technology skills with the highest demand supply gap of over 50%. इसका मतलब ये हो रहा है कि you take 100 people, and out of those 100 people, 50 people, only 50 people are able to sort of get that margin between what is required from that skill and whether people can provide that. That's a 50% gap. Only 50 individuals in 100 people were able to do that, and I'm talking about India in this case. Now the job landscape is continuously evolving with new technologies coming. So just quantum computing, very amazing technology, and it's like my forte. It's what I'm working on researching towards. Blockchain तो पॉपुलर हुआ था अपने 2020 के बाद. So all the post COVID times when Web3 really hit, blockchain was capitalized back then क्योंकि well the entire Web3 technology was based on blockchain. ऑल द बिग नेटवर्क्स एथीरियम, पॉलीगॉन, ये सब ब्लॉकचेन ही है एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो. बट ब्लॉकचेन हैज़ मच बेटर and much versatile use cases than just another network or a new internet, if you call that. Blockchain supply chain में बहुत बड़ा इसका यूसेज है. मेडिकल फील्ड में ब्लॉकचेन का बहुत बड़ा रिकॉर्ड्स को ट्रैक पे रखना. इनफैक्ट आई हैड दिस प्रपोजल इन अ कोर्स आई डिड दैट ब्लॉकचेन्स कुड बी यूज्ड टू conduct elections in India, although that seems unreal because blockchain has this whole proof of work. So nobody would want this sort of a fair election in India. Corruption is at all levels. I don't want to get too political about this, but that's a good place where it could be an AR, VR, augmented reality, and virtual reality. Although, like if I talk about India, India is still behind in terms of commercializing VR and AR. I mean, you would have apps on the Indian Play Store, the Indian version of the Play Store. You would have developers from India who are working on these technologies. Snapchat is a big example of augmented reality. It is still developing in India. अभी बाहर ज़्यादा ही है इस चीज़ का. Um, and of course, since I'm talking about the IT sector in India, I want to talk about these big hubs that are conducting sort of these mature tech hubs as of now. So we got Bengaluru, Hyderabad, Delhi, Bombay, Chennai, and Pune. And Pune, yeah, it seems a little new to me that Pune would be in this because well, Pune is a developed city, of course, in terms of IT. TCS has a center there, and a lot of my friends got placed at TCS Pune. So that's a big tech hub, and all these six cities comprise of 85% of India's tech talent pool. Just imagine 85 people in 100 people chosen from any company on average would be from these six cities. So it tells you that it's not only about your own skills but the environment you are in as well. कि आप इस शहर में रह के आपको कैसा एक्सपोजर मिल रहा है. सिर्फ सिर्फ एक्सपोजर की बात नहीं है. बात है हाउ यू आर सॉर्ट ऑफ एडजस्टिंग टू दैट एनवायरनमेंट. या तो यू कम out of the cocoon as a butterfly ready to evolve, go out into the world, show your colors as in not the metaphor show your true colors, but it's like आप बता पा रहे हो, or you get crushed. So these cities do have this sort of this environment. Feng shui तो नहीं बोलूँगा, but it's like हाँ आपको एक environment मिल जाएगा. And of course then we have this digital talent gap जो expected to widen है अगले 5 साल में 25% से 28%, which is it's believed कि ये जो talent gap है ना ये बढ़ने वाला है in terms of demand. ये बढ़ने वाला है इंडिया में because अब जो फॉरेन फर्म्स हैं वो इंडिया में इस्टेब्लिश करी. यहाँ पे चीप लेबर है, और चीप लेबर के अलावा यहाँ पे वर्कफोर्स बहुत टैलेंटेड एज इन वी आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट स्किल इन द लेटर पार्ट ऑफ दिस एपिसोड. तो वहाँ पे इंडिया का काफ़ी अच्छा फोटे है. एंड ऑफ कोर्स फ्रेशर्स. ओके, तो फ्रेशर्स तो सबको पता ही है, फ्रेशर्स भरे पड़े हैं. अभी कई लोगों को जॉब नहीं मिल रही है. आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दैट. फर्स्ट लेट्स
understand the economics behind the tech hiring scene in India. So fresher addition is sort of expected to increase two times by 2028, अगले 5 साल में या अगले 4 साल, अब तो 24 आ गया ना, अगले 4 साल में this is going to increase two times. And obviously it's like basic thing कि हर साल नए स्टूडेंट्स जेई का एग्ज़ाम दे रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं. So it's expected that tech graduates will increase. डिमांड पे इतना भले ही असर ना पड़े, सप्लाई बढ़ने वाला है, एंड दैट विल कॉज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दैट लेटर. तो दे विल अकाउंट फॉर 16 to 18% ऑफ टोटल डिजिटल टैलेंट सप्लाई. तो ये ज़रा समझने की बात है कि इसमें रीस्किलिंग और अपस्किलिंग का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होने वाला है एज वी मूव फॉरवर्ड. और मैंने नासकॉम की रिपोर्ट में कई और इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़ी, जैसे कि there was this sort of this experiment कह लो आप, but it's like a योजना, and it was called Future Skills Prime. And ये initiative NASCOM and MEITY, as in Ministry of Information Technology, इन दोनों के बीच का एक ऐसा collaboration हुआ था which was focused on sort of this upskilling program for employees. And not only employees, for youth generally, जो schools में है या जो colleges में है. So they had like 15.89 लाख, so almost 16 लाख से ज़्यादा साइन अप्स हुए थे उनके पास. um, जिसमें से 85% तो यूथ में से थे. डिजिटल टैलेंट इंडिया, डिजिटल टैलेंट नेशन ऑफ द वर्ल्ड वाला जो एक योजना चली थी कि इंडिया को बनाने का है. सो उसमें 16 लाख के अराउंड साइन अप्स थे. एंड ऑफ कोर्स उसमें 6.5 लाख से ज़्यादा लर्नर्स एनरोल हुए थे. तो साइन अप्स की तो ठीक है, वो तो हर कोई कर लेता, बट एनरोल होके कितने लोगों ने उस कोर्स को अटेंड किया, कितने लोगों ने लाइक दे कनेक्टेड विद द प्रोग्राम, डिड इट कम्प्लीटली एंड लाइक प्रॉपरली. सो उसमें ये था. एंड इससे एक इट्स लाइक अ केस स्टडी. इससे पता ये चला कि हाँ, रीस्किलिंग और अपस्किलिंग एक्चुअली काम कर रही है. कई लोग उससे बेनिफिट होके आगे इन उनके करियर्स में एनहांसमेंट हुआ. मूविंग ऑन टू सप्लाई ऑफ स्टेम ग्रेजुएट्स. सो स्टेम होता क्या, पहले तो स्टेम इज साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स. तो ऑल दीज सॉर्ट ऑफ दीज स्मार्ट टॉपिक्स जो इंजीनियर्स जिससे निकलते हैं, वो इन चारों सब्जेक्ट्स के कॉम्बिनेशन से ही बाहर आते हैं. STEM is present everywhere, and especially in America. If you go, NASA have their own very unique and special STEM program, which is it's like आप सिर्फ साइंस ना लो या फिर सिर्फ इंजीनियरिंग ना छोड़ो, जस्ट एक स्टेम, एंड आपकी बहुत वहाँ वैल्यू बढ़ जाती है. इफ यू आर अ स्टेम स्टूडेंट, स्टेम लर्नर, नॉट ओनली एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट और मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स और अ ग्रेड स्टेम, यू कंबाइन ऑल द 4 सब्जेक्ट्स. तो इसका अगर मैं बोले तो इंडिया ना आयरॉनिकल, बट इंडिया हैज़ द हाइस्ट नंबर ऑफ स्टेम ग्रेजुएट्स विच इज़ एट 2.5 मिलियन. जो पूरी दुनिया के 33%, वही वन थर्ड वाला फिगर, वन थर्ड वाले फिगर का it's like comprises of that. So 2.5 million, largest annual supply of STEM graduates. इसमें सिर्फ टेक वाले नहीं आ रहे, इसमें साइंस, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, इन सब का पूरा है. एंड ऑल्सो एज आई टोल्ड यू अबाउट चाइना बिफोर एंड इंडिया, ये ए आई लाइक ए आई स्किल वाला जो हुआ था उसमें टॉप पे चल रहे थे अपस्किलिंग वाली चीज़ में. तो इंडिया हैड दिस हायर रिलेटिव ए आई स्किल पेनिट्रेशन रेट. एआई स्किल पेनिट्रेशन रेट, ये जो टर्म है इसका मतलब है कि इट्स लाइक इट्स अ नंबर दैट टेल्स यू कि न्यू टेक्नोलॉजीज एआई में आ रही हैं. तो एआई एज स्किल्स लोग कैसे उसको डिसॉल्व कर पा रहे हैं, एंड वेदर पीपल कैन इट पेनिट्रेट्स थ्रू देयर ब्रेन, एंड उसकी टेस्टिंग होती है ऑब्वियसली. एंड इंडिया ने G20 के एवरेज से ज़्यादा सरपास किया. G20 इज जस्ट 20 नेशंस कमिंग टुगेदर, अभी जिनके समिट्स हुए थे इंडिया में. एंड ये बात, इस बात का प्रूफ ये है कि एआई लिटरेसी इंडिया में एक्चुअली बढ़ी है. इसका रीज़न ये है कि सिर्फ एआई इकोसिस्टम डायनामिक नहीं है इंडिया का. नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं, ये तो हो ही रहा है. नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं, पॉलिसीज़ आ रहे हैं, एआई एआई को हर जगह पॉपुलराइज़ करा जा रहा है. मीम्स का इसमें ऑब्वियसली बहुत बड़ा खेल है. एंड लेट्स कीप दिस फॉर अ लेटर पॉडकास्ट एपिसोड, बट आई एम वर्किंग ऑन समथिंग अमेजिंग सराउंडिंग मीम्स एंड एआई. लेट्स टॉक अबाउट दैट सम अदर डे. सो इंडिया का यही है कि एआई को लेवरेज करा जा सकता है टू सॉर्ट ऑफ हैव दिस मोनोपोली इन द टेक सेक्टर ऑल ओवर द वर्ल्ड. इंडिया के सप्लाई के केस में बहुत अच्छा है,
बट व्हेन इट कम्स टू इनोवेशन हम थोड़ा पीछे हैं। इसरो की तो इसरो इस काबिल तारीफ विदाउट डाउट। इसरो कम कॉस्ट में मल्टीपल लॉन्चेस कर पाता है और ऐसे मिशंस कर पाता है जिसमें नासा को बिलियंस ऑफ डॉलर्स लग जाते हैं पब्लिक मनी का। इसरो उस पब्लिक मनी को वाइजली खर्च करता है, जो मिशन रिक्वायरमेंट्स है उसके हिसाब से करता है। सो एनीवेज एज आई वाज सेइंग, इंडिया इज हैविंग दिस होल एआई लैंडस्केप चेंज वाली चीज़, एंड इसमें कंटेंट क्रिएटर्स का बहुत बड़ा हाथ है बाय द वे। जिसे तन्मय भट्ट स्टार्टेड टू डू हिज overpowered.tech वाली पॉडकास्ट वाली चीज़, एंड इट रियली विद द होल शॉर्ट्स एंड एवरीथिंग पॉडकास्ट वाला फॉर्मेट, पीपल स्टार्टेड लर्निंग अबाउट एआई। चैट जीपीटी वाज जस्ट अ टर्म, अब तो सब जानते हैं कि वो ऑपरेट कैसे करता है। म्यूजिक फाइल डॉट लॉल ऐसे एआई टूल्स का सबने नाम सुना ही होगा। नाउ दैट टेक्स अस टू अ मोर important part of the podcast. Going into the next 5 to 10 years, what are the obstacles and challenges that India, और rather India छोड़ो, आप तो जनरली बात करते हैं, what the world could face, but I want to focus on India since this is a podcast catered to the Indian audience mainly. So skills gap, I put number one as the skills gap. In number one obstacle is skills gap, and ये नासकॉम के रिपोर्ट में भी अच्छे से इस पे तवज्जो की गई थी। स्किल्स गैप बहुत ज़्यादा है, एंड इट्स नॉट ओनली कि चलो आपने 2-3 कोर्सेज कर लिए कोर्सेरा से, आप एजुकेटेड हो चुके हो, लिटरेसी है आपको, बट दैट डज नॉट define whether you have those skills. Ultimately, if you have skills that have no use in the real world, then there is no point in working that hard to get them, attain them. And this becomes a problem. It's not only because of platforms, but लोगों को पता ही नहीं है कि स्किल्स क्या डिमांड में है, और अगर डिमांड में है तो ये नहीं पता कि उनका एप्लीकेशन क्या है। दैट raises multiple issues. Second obstacle I would say is L&D, which is learning and development. So, sorry, leadership and development. So, tech के अलावा companies don't, अच्छा, just so I sort of break this stigma, modern day IT companies in India are not at all जैसा सोचा जाता है कि हाँ भाई बकरे उठा के ले जा रहे हैं, ऐसा है by the way. It is prevalent in a lot of companies, but कम हो गया है. What nowadays recruiters want are people who are of course skilled. Of course they want skills, नहीं तो काम कैसे होगा, but also they want people who can lead, who have personality, good personalities, and all of this needs to be done and can be done with L&D, leadership and development programs. ऐसे सेमिनार्स करवाओ, ऐसे प्रोग्राम्स में इनरोल कराओ स्टूडेंट्स को या खुद को, where you're learning how you become a leader, and a leader doesn't necessarily mean a CEO. वो तो अब मॉडर्न टर्म्स में अ सीईओ लाइक इज द लीडर ऑफ द कंपनी, राइट? बट इट्स नॉट दैट। लीडरशिप कैन बी इन द फॉर्म ऑफ थॉट लीडरशिप एक पूरा टर्म है, कंटेंट मार्केटिंग में ही है कि आप आपके थॉट्स के थ्रू कैसे लीडरशिप जनरेट कर रहे हो इन अ कंपनी और व्हाट सो L&D is something that people need to focus on. Third obstacle that I would put is lack of good training programs, and this is a big problem in India especially. बाहर इतनी नहीं है, इंडिया में बहुत है, यूरोप में बिल्कुल भी नहीं है ऑलमोस्ट, बिकॉज वहाँ के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आर catered to sort of hit you in the brain कि आपके न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो जाते हैं, वो बोरिंग नहीं होता। बट यहाँ के जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, एक तो वो क्वालिटी वाइज बहुत ख़राब है। एज फार एज आई हैव सीन, मेनली पीपीटीज होती हैं जिसमें स्लाइड आफ्टर स्लाइड आफ्टर स्लाइड, टेक्स्ट, इमेजेस, बस ये दिया रहता है, देयर इज नथिंग इंटरैक्टिव। एंड जो स्पीकर भी होता है, इट्स लाइक वो सुबह उठ के आ रहा है, एकदम नींद उसकी हुई नहीं है एंड मजबूरन उसको देना पड़ रहा है वो लेक्चर। तो ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम आती है। एंड हर्ड मेंटालिटी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडियन ऑडियंस में, तो है ही। मैं तो इसके अगेंस्ट सालों से हूँ कि जस्ट बिकॉज आप एवरेज भी हो, इट इज़ बेटर टू स्टे अवे फ्रॉम द हर्ड, कुचले जाओगे, बिकॉज आपके स्किल्स और काबिलियत इज़ नॉट द थिंग दैट वर्क्स इन द टेक वर्ल्ड और एनी वर्ल्ड, इफ़ यू कॉल दैट। लक का बहुत बड़ा रोल है। तो अगर आपके पास एक ऐसा मौका है वेर यू कैन कट अवे फ्रॉम द हर्ड। अब हर्ड में मैं अगर टेक पे आया ना, सो लेट मी प्लीज़ एड्रेस टू थिंग्स। पहली चीज़ तो डीएसए वाले लोग, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग वाले इतने ज़्यादा भरे पड़े हैं, एंड उसका मेजर रीज़न ये है कि जो बड़ी कंपनीज गूगल, अमेजोन, फ्लिपकार्ट,
आई नो ट्विटर, ट्विटर का तो खैर चेंज आ रहा है अभी धीरे धीरे, बट ये जो बड़ी कॉन्ग्लोमेरेट्स हैं, या टीसीएस ले लो या एसेंचर ले लो, सब लोग ऐसे कैंडिडेट्स को हायर करना चाह रहे हैं जिनको डीएसए आता है। मुझे डीएसए से प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट सो यू नो। मुझे प्रॉब्लम इस बात से है कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का जो जॉनरा था, वो इट वाज लाइक सॉल्विंग क्यूब्स एट वन टाइम। बहुत पॉपुलर था, रिस्पेक्टेबल था, रशियंस दिखते थे आपको, यूरोपियंस दिखते थे, इंडियंस अब आना शुरू हुए हैं। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग को कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग ही रहने देना चाहिए, उसका कंपनीज की हायरिंग में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। Because it's like you don't expect a person to solve the entire business problem by himself. He needs to work in a team environment. वही तो होता है कंपनीज में। एंड अगर आपको लाइक, if you're a solo guy, so there's no point in getting placed in a company or working in a company. You could work as a freelancer on a contract based gig, नहीं तो आप सीधा सीधा अप्रोच करो कंपनीज को कि आपके बिजनेस प्रॉब्लम के लिए मेरे पास ये सोल्यूशन है। यू डू दैट ओवर अ मेल, कोल्ड कॉलिंग इज अ गुड स्किल टू इनहेरिट। तो ये चीज़ वहाँ आती है। अब 4 जो मुझे चैलेंजेस दिखे, मैं जल्दी बात करूँगा उनकी। इंक्रीजिंग रेट ऑफ स्किल्स इन डिमांड। सो जैसे-जैसे टाइम बढ़ा है, नई स्किल्स आई जा रही है मार्केट में, ये रिक्वायरमेंट है, बहुत बेसिक फंडामेंटल लॉ ऑफ नेचर है कि एज़ टाइम प्रोग्रेसेस नई टेक्नोलॉजीज़ कराई जा रही हैं, एंड उनकी स्किल्स की जो रिक्वायरमेंट है, जो उनको समझने के लिए या उनको ऑपरेट करने के लिए, दैट्स गोना इंक्रीज़ ऑफ कोर्स। So that's a big challenge we'll have. Economic influence. I was afraid in the past few months, in fact, पिछले साल ही, that the whole recession thing going on. It never happened, and obviously there are some hidden forces that are sort of delaying this thing. तो इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस तो ऐसा है कि इफ इट्स रियली ट्रबलसम, तो आप स्किल्स करके ना करके देयर इज नो पॉइंट, होना है वो तो होना ही है। तो आप कुछ नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट आप अभी का मार्केट का कंडीशन समझ के एक आइडिया लगा सकते हो कि यार ये लगेगा मुझे, ऐसी स्किल्स की ज़्यादा वैल्यू होगी, ऐसी स्किल्स की वैल्यू नहीं होगी। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ द इकोनॉमिक्स ऑपरेट ओवर कंसर्निंग योर स्किल सेट। Then we got industry to academia outreach, which I find is a very big challenge. क्योंकि मैं खुद कॉलेज में फेस किया ना, लाइक आपको सब प्रोग्रामिंग एंड ओएस एंड डेटा स्ट्रक्चर सब सिखा देंगे, बट व्हेन इट कम्स टू अप्लाइंग दैट टू इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स, या इंडस्ट्री की मैं बात करूं, मतलब एंटरप्राइज में या कॉर्पोरेट में सॉफ्टवेयर कैसे लिखे जाते हैं, दैट इज़ अ प्रॉब्लम। नोबडी नोज दैट मच अनलेस आपका कोई इनसाइडर बंदा हो जो वहाँ काम कर रहा है, जो आपको बता पाए। सो कॉलेज विजिट्स भी खैर लोग कहेंगे कि कॉलेज विजिट्स तो होती हैं, बट उससे तो थोड़ी होने वाला है। आई थिंक व्हाट नीड्स टू बी डन इज कि जो कंपनीज का पीआर यूनिट है, पब्लिक रिलेशंस, उनको और अपनी मार्केटिंग मार्केटिंग टीम के साथ ही कंसल्ट करके उनको कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, आईआईटीज़ के अलावा भी प्लीज़ टियर 2 टियर 3 कॉलेजेस में ऐसे हिडन जेम्स छुपे हैं, आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। सो आई बिलीव कि इंडस्ट्रियल जितने कॉर्पोरेट्स हैं उनको अपने पीआर टीम को बोलना चाहिए, सबको बोलना चाहिए दैट कॉलेज के लिए ऐसे प्रोग्राम्स बनाएँ, जहाँ पे वो लाइक स्टूडेंट समझ पाएँ कि इंडस्ट्री में हो चीज़ें क्या हो रही है। कि मुझे अगर बोल रहा है कि द रोल इज़ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियरिंग, एसडीई रोल है, तो ये होता क्या है? एंड अगर एक कंपनी का यूज़ केस ले रहे हो, तो आप एक प्रोडक्ट बना रहे हो, तो उसमें आपका क्या रोल होगा? तुमको क्या करना है, कैसे ऑपरेट होगे? दिस गिव्स अ गुड आइडिया ऑफ टू द स्टूडेंट और टू द फ्रेशर कि भैया ऐसे काम होता है, बिकॉज़ फ्रेशर्स को ही प्रॉब्लम आती है मेनली ये चीज़, एंड ये सब सीखने में काफ़ी वक़्त लग जाता है। इफ देयर वाज़ अ सॉल्यूशन जो इस चीज़ को रिड्यूस कर दे टाइम को, तो कंपनी का पैसा बचेगा, एंड फ्रेशर्स का पेशेंस बचेगा, उनका इतना हार्ड वर्क नहीं लगेगा, एंड वो जल्दी इवॉल्व हो पाएँगे कंपनी में। And the last challenge that I feel is backing special people. And I really want to put this to any company guy, corporate guy, और स्पेशली एचआर वाले, रेज्यूमे देख के या फिर ये देख के कि डिग्री कौन सी है या कौन सी स्किल है। अगर बड़ी स्किल भी है और आपको नहीं आती है, ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ईगो ईगो को नहीं बोलूँगा मैं, इसको बोलूँगा कि आपको स्किल का अगर नहीं पता, जैसे क्वांटम कंप्यूटिंग की बात करता हूँ। मैंने कल मान लो अप्लाई किया, एंड आई हैव दिस होल पोर्टफोलियो इन बिल्डिंग क्वांटम एल्गोरिथम्स, क्वांटम मशीन लर्निंग किया मैंने, एंड आई एम अप्लाइंग टू अ कंपनी दैट वर्क्स विथ एआई। अब
यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि ठीक है, मेरी क्वांटम नॉलेज उधर इतनी काम नहीं आने वाली है, बट वाइल आई वाज बिल्डिंग ऑल ऑफ दिस, मेरा जो अप्रोच बन गया प्रॉब्लम सॉल्विंग का, वो कैसे इधर ट्रांसफ़र करा जा सकता है। सो देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट इन मशीन लर्निंग कॉल्ड ट्रांसफ़र लर्निंग, कि आप एक सर्टेन प्रॉब्लम से दूसरी प्रॉब्लम में जो आपने सॉल्यूशन ढूँढा पहले वाले में, उस सॉल्यूशन को कैसे सेकंड में ब्रिज कर पाओगे, ताकि आपको सेकंड प्रॉब्लम को सॉल्व करने में उतना टाइम और रिसोर्सेज नहीं लगे। दिस इज़ ट्रांसफर लर्निंग। इट्स लाइक आपने गाड़ी चलाना सीख लिया एंड मैं आपको बोलूँ कोई बड़ा ट्रक चलाओ, तो आप पहले तो नहीं सीखोगे बट काफ़ी जल्दी पिकअप कर लोगे, बिकॉज़ आपको बेसिक पता है कि फोर व्हीलर में ऐसा गियर रहता है आगे पीछे, रिवर्स के लिए, फ्रंट के लिए एक्सेलरेटर, ब्रेक, ये सब बेसिक पता रहता है। सो ट्रांसफर लर्निंग इज़ समथिंग क्रूशियल ओवर देयर। एंड एज़ आई वाज़ सेइंग कि स्पेशल पीपल होते हैं, टियर 2, टियर 3 कॉलेजेस में भी होते हैं, जो एक्चुअली यू नो सिर्फ़ जॉब के पीछे नहीं पड़े हैं। वो अप्लाई भी इसलिए कर रहे हैं या वो कंपनीज़ में काम ही इसलिए करना चाह रहे हैं, सिर्फ़ पैसे की नहीं पड़ी उनको। दे रियली वांट टू लर्न विद अदर पीपल एंड कंट्रीब्यूट। इन फैक्ट क्योंकि टेक के ऐसे मारे होते हैं। तो आई हैव दिस फ्रेंड श्वेतम, अगर तू देख रहा है, श्वेतम गोयल इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन एंड वो भी ऐसा स्पेशल आदमी है, मतलब he may not have that corporate working wala mentality, but he has a good knowledge, a good knowledge base, and with enough guidance and training मतलब वो कर सकता है। सो वही कह रहा हूँ कि जो हमारा टेक सेक्टर है उसको ऐसे लोगों को बैक करना आना चाहिए, क्योंकि विद टाइम ऐसे लोग आने वाले हैं और आएंगे बाहर। सो देयर नीड्स टू बी समथिंग डन। एंड मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मतलब आई वाउच फॉर स्पेशल पीपल, आई बिलीव इन आउटलायर्स टू बी ऑनेस्ट, एंड दैट्स द इट्स वन ऑफ द रीजंस आई एम डूइंग दिस पॉडकास्ट, कि मैं आउटलायर्स से कनेक्ट करना चाहता हूँ, ऐसे लोगों से जो सिर्फ पैसे के लिए या सिर्फ यू नो अप्रेजल या आई डोंट नो कंपनी में आपका प्रमोशन के लिए नहीं जी रहे हैं, जो एक्चुअली अपना स्किल सेट यूज़ करके कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं ग्रेटर गुड के लिए। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द प्रोसेस ऑफ हायरिंग इन टेक। अब हायरिंग इन टेक की बात हो रही है तो प्रोसेस की भी बात कर लेते हैं, होता कैसे है जिसको नहीं पता। टेक सेक्टर में मेनली सॉफ्टवेयर ही है, और भी चीज़ें होती हैं, ऑटोमोबाइल्स, रोबोटिक्स। मैं इनका ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा क्योंकि आई गेस ऑडियंस में इतने लोग नहीं होंगे जो ऐसी सर्टेन चीज़ों पे होंगे। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड आई कुड डू एन एपिसोड लेटर, बट मेनली आई बी फोकस्ड ऑन सॉफ्टवेयर एंड डेवलपमेंट, क्योंकि कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स ही ज़्यादातर देख रहे होंगे ये लोग। सो द प्रोसेस इज़ बेसिक। आप या तो अगर कॉलेज में हो तो प्लेसमेंट में बैठ जाओ। प्लेसमेंट में क्या होता है, यू साइन अप अ फ्यू फॉर्म्स, या एक फॉर्म भी, आप इंटरव्यू जाके देते हो। अब इंटरव्यू में क्या पूछते हैं वो वो कंपनी वाले ही जानते हैं और जो स्टूडेंट देता है वही जानता है। बट बेसिक कंप्यूटर साइंस के कॉन्सेप्ट्स पूछेंगे, डेटा स्ट्रक्चर्स, एनवायरनमेंट, कोई प्रॉब्लम दे देंगे सी सी प्लस प्लस में लिखने के लिए ऑन द स्पॉट कोड विदाउट अ कंप्यूटर। जस्ट ट्राई टू सी व्हाट आर योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एंड बेसिक नॉलेज बेस कितना है। Um, ये रहता है। एंड टेक्निकल राउंड्स कहते हैं इनको। कई जगह ग्रुप सेशंस भी होते हैं, जिसमें एक प्रॉम्प्टर रहता है, क्वेश्चन, उसके पास एक ऐसा पूरा क्वेश्चनेयर तैयार होता है, एंड देयर आर 5 टू 6 गाइस सिटिंग अराउंड, एंड शी और ही, द प्रॉम्प्टर, वो क्वेश्चंस पूछते हैं। दे जस्ट सॉर्ट ऑफ ट्राई टू कैलकुलेट कि कौन कितना आंसर कर रहा है, कौन कितना कॉन्फिडेंट है। तो दे हैव ऑल दीज मैट्रिक्स टू अंडरस्टैंड दैट। नाउ एंड उसके बाद फिर एचआर राउंड्स होते हैं। एचआर राउंड्स आर इंपॉर्टेंट बाय द वे, टेक्निकल से ज़्यादा कई कई हद तक। एचआर का पूरा खेल ये है, एचआर इज़ हैज़, मतलब आई एम नॉट सेइंग दिस इन अ डेरोगेटरी और अ नेगेटिव सेंस, बट एचआर पीपल हैव डिग्निटी, मतलब मैं उसको स्यूडो डिग्निटी भी नहीं कहूँगा, बट उनका एक वो रहता है कि इफ़ यू आर अ गुड कैंडिडेट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट बी ओवर स्मार्ट वाली चीज़, ठीक है, उनको नहीं सुनना है, बिकॉज़ दे आर शॉर्ट ऑन टाइम, दे आर शॉर्ट ऑन पेशेंस। उनको एक दिन में कई सारे कैंडिडेट्स को स्क्रीन करना पड़ता है, व्हिच इज़ अ बिग हैसल है। माय सिस्टर इज़ इन एचआर एंड आई नो द पेन शी हैज़। काफ़ी टाइम लगता है। तो एचआर राउंड्स का यही है कि कामली दो, बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट मत हो, जो क्वेश्चन पूछा उतना ही बोलो। एंड ऑफ कोर्स ये भी नहीं है कि एकदम चुप ही बैठे हो, थोड़ा एंगेज कर सकते हो। अ फ्यू जोक्स, जोक्स ऐसे रखो कि मतलब सामने वाले को आए। एकदम जेनज़ी वाले जोक्स नहीं, क्योंकि रिक्रूटर्स ज़्यादातर मिलेनियल्स ही होते हैं आजकल। जेनज़ी का कोई नहीं मिलेगा, हार्डली मिलेगा। तो यही रहता है। एंड एचआर राउंड के बाद फिर इफ दे फील दे वांट टू गेट
a few more interviews done just to make sure that the strategy you fit in their strategy. तो 1-2 राउंड्स और हो जाएँगे, बाकी उसके बाद दे मेजरली उसके बाद एंड हो जाता है। एंड दे यू आर ईदर रिजेक्टेड और यू गेट एन ऑफर लेटर फ्रॉम द कंपनी कि भैया आके काम करिए हमारे साथ, आपको हम सैलरी देंगे, बेनिफिट्स देंगे, सीटीसी है पूरा आपका, नो द एडेड व्हाटएवर इट इज़। नाउ यही बेसिक है हायरिंग टेक में। एंड व्हाट शुड यू हैव, बाय द वे दिस इज़ अ गुड सेगमेंट ऑफ अ पॉडकास्ट एपिसोड, व्हाट शुड यू हैव? मैंने इसको ऐसे नाम रखा है। सो इन द मॉडर्न 21st सेंचुरी, इन द नेक्स्ट 5 to 10 years, अगर मैं टेक वालों की बात करूँ, आपके पास ऐसा क्या होना चाहिए कि आपको कंपनीज उठा के ले जाएंगी, मतलब पूछेंगी भी नहीं कि भाई तू कौन है, कहाँ से है, इफ़ यू मास्टर दी स्किल्स। एंड पहले ही बता दूँ भैया, पहले वार्निंग दे दूँ, दिस इज़ नॉट अ जेन्युइन कंसल्टिंग एडवाइस, बट इट इज़ अ गुड एडवाइस, because I have seen this for myself, for my juniors, for my colleagues all over. सबसे पहली चीज़, ये बेवकूफ़ी तो बिल्कुल मत करना कि एक स्किल को ही मास्टर करके आप आगे बढ़ जाओगे। आजकल की कंपनीज़ आपका पॉलीमॉर्फिक नेचर देख रही कि आप मल्टीपल टाइप्स ऑफ बिज़नेस चैलेंजेस में कैसे अडैप्ट कर सकते हो, और अगर कभी नई स्किल सीखने की ज़रूरत पड़ी, रीस्किलिंग जिसको कहते हैं या अपस्किलिंग, तो उसमें आप कैसे सॉर्ट ऑफ अडैप्ट कर सकते हो? क्या आप सीखने के लिए आपका माइंड ओपन है? डू यू हैव एन ओपन माइंड टू लर्न न्यू थिंग्स वेदर दे आर हार्ड और नॉट, और वेदर पीपल आर यूजिंग देम और नॉट? सो दे टेस्ट यू ऑन दैट। सेकंड ऑफ ऑल, आई थिंक पहला तो चलो स्किल्स हो गए, सेकंड इज यू नीड टू बी, अगर आप इंट्रोवर्ट भी हो, मैं बहुत बड़ा इंट्रोवर्ट था बाय द वे, बट आई ट्राई टू पुश माई सेल्फ आउट ऑफ द कम्फर्ट जोन। मैंने लोगों से बात करना शुरू की, कॉलेज वॉज अ टर्निंग पॉइंट फॉर मी, अल्हम्दुलिल्लाह। आई वॉज अगेंस्ट कॉलेज फॉर प्रीटी मच अ होल ईयर ऑफ माई लाइफ, जब मैं थोड़ा इलॉन मस्क का फ़ैन हो गया था, तगड़ा वाला, स्टार्टअप्स वगैरह। बट कॉलेज इज़ इम्पॉर्टेंट इन इट, कि आप भले ही वहाँ सीखने नहीं जाओ या आप कोई बहुत बड़ा काम नहीं करने जा रहे हो, बट आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में बहुत फ़र्क पड़ता है। द पीपल यू मीट इन कॉलेज एंड आप उनके साथ जो बातें करते हो, जो इंटरेक्शंस होते हैं, उसमें आपका पर्सनैलिटी एक तरीके से शेप हो रहा होता है, लाइक लाइक क्ले पॉट, जो पॉटरी में आप जैसे शेप देते हो आपको, तो आपका इट्स जस्ट इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू रिएक्ट टू सिचुएशंस। अगर आपने डिसाइड किया कि मैं मेरे कंफर्ट जोन के अंदर रह के ही चुपचाप बैठे रहूँगा या बैठी रहूँगी एंड कुछ नहीं होने वाला है, जैसे इंटरेक्शन हो रहा है कॉलेज में, विच इज़ सॉर्ट ऑफ अ पॉजिटिव वर्ड फॉर रैगिंग। रैगिंग जैसा बुरा नहीं होता, बट इंटरेक्शन थोड़ा काफ़ी कन्फ्रंटेशनल हो जाता है इंट्रोवर्ट्स के लिए, एक्सट्रोवर्ट्स इजीली कर लेते हैं जो बहुत आउटगोइंग होते हैं। So this would be an opportunity for you to sort of begin your journey into this, कि आज जो मैं डिसीजन लूँगा ये लूँगी, ये मेरे करियर को भी इन्फ्लुएंस करेगा, क्योंकि मुझे ऐसे अनकंफर्टेबल सिचुएशंस आगे बहुत फेस करनी पड़ेंगी। तो मैं तब वहाँ कैसे रिएक्ट करूँगा या करूँगी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड, आई थिंक अ गुड एडवाइस फ्रॉम मी इज़ कनेक्शन बिल्डिंग होनी ही चाहिए। कनेक्शंस करना, कनेक्शंस बनाना इज़ द वेरी एसेंस ऑफ बीइंग ह्यूमन। एरिस्टोटल सेड, मैन इज़ अ सोशल एनिमल, राइट? तो उसके पीछे बहुत बड़ा विज़डम है कि हम अकेले कई लोग रह लेते हैं, बट सोशल लाइफ इज़ इम्पोर्टेंट। इवन इफ यू आर समवन हू कोड्स ऑल डे ऑल नाइट, अपने घर में बैठे हो, मम्मी पापा के घर में, इट्स नॉट अ बैड थिंग, बट आप अंदर ही बैठे हो, आप अपने में खुश हो, अल्टीमेटली दैट डज नॉट पैन आउट। यू आर अ सोशल क्रीचर बाय डिफ़ॉल्ट, आपकी फ़ितरत, आपके इनेट नेचर में है। सो कनेक्शंस स्पेशली, एंड कनेक्शंस वर्क करते हैं बाय द वे। ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप सिर्फ़ आपकी काबिलियत के थ्रू ऊपर जाते हो। कभी-कभी यू आर अलाउड टू बेंड सम रूल्स टू योर एडवांटेज। मैं इसको कुछ अनएथिकल नहीं कहूँगा, मैं इसको कहूँगा अपॉर्च्युनिटी। इकोनॉमिक्स में अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट यही होता है कि एक डिसीज़न आप 2 डिसीज़न्स हैं आपके पास, एंड आप अगर एक लोगे ना तो दूसरा फिर नहीं, उसके बेनिफिट्स आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो फिर नहीं लिया ना। तो ये चीज़ समझने वाली बात है। एंड कनेक्शंस बनाते आना चाहिए। लिंक्डइन इज़ अ गुड प्लेस टू स्टार्ट डूइंग दैट, बट लिंक्डइन इज़ आल्सो नॉट इनफ। इसकी मैं पूरी 1 घंटे की बात कर सकता हूँ, क्यों? लेट्स लेट्स कीप दैट फॉर अ फ्यूचर एपिसोड इफ यू गाइस वांट दैट। इसके अलावा ज़्यादा तो नहीं है, आई गेस वही है कि टाइम से आप खुद शेप होते जाते हो। नाउ
आईआरएल केसेस। सो मेरे पास इतना इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस नहीं है, लेट मी स्टेट दैट। मैं प्लेसमेंट्स में नहीं बैठा, कॉलेज की प्लेसमेंट्स में। वो मेरी स्ट्रैटेजी का पार्ट था। मुझे वही, एज आई टोल्ड यू, हर्ड मेंटालिटी, सब लोग ही प्लेसमेंट्स में बैठ रहे थे। एंड it would be egoistic of me or proud of me, like prideful of me to say कि यार मैं तो बहुत स्पेशल हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव सर्टेन स्किल्स जो मैं जिनको कल कर पा रहा हूँ बहुत ज़्यादा यूज़। But I think in my case, what I've done, I will not reveal a lot of things because I just don't want to. I want to keep them to myself. But I guess मैं इंटरव्यूज में बैठा हूँ, मुझे पता है कैसा होता है। एंड द थिंग इज कॉन्फिडेंस, इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। अगर तुमको कुछ नहीं आता ना, एंड ऑफ कोर्स इट्स अबाउट एथिक्स एंड बीइंग ऑनेस्ट, it is important nowadays because the guys taking, or the guys and gals taking your interview, they can spot BS a mile away। उन्होंने लोगों के साथ काम किया है। So you don't expect to fool them। बिल्कुल भी नहीं, like it would be a stupid thing to do। So be honest in your interview। If you don't know anything, say you don't know it। Okay। And of course पूरे टाइम नो 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 भी नहीं करना है, that would be a red flag। That would be a big red flag। आपको इंटरव्यूअर्स को किसी तरह कन्विंस करना है इन योर 5 to 10 मिनट शॉर्ट इंटरव्यू कि भाई मैं सीखने के लिए तैयार हूँ। आई एम एबल टू अडेप्ट टू सिचुएशंस। आई एम एबल टू अंडरस्टैंड कि मुझे कहाँ, मुझसे क्या एक्सपेक्टेड है, मैं उसको कैसे कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। एंड ऑल्सो शो दैट यू आर विलिंग टू टेक रिस्क ऑन समथिंग। ऑल्दो कंपनीज का पूरा फंडा ही है कि जितना रिस्क मिटिगेशन कर सकते हैं उतना करते हैं। दैट्स वाई दे हैव दिस होल मल्टीपल राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज, क्योंकि जितना रिस्क तुम अपने साथ ला रहे हो उसको जितना कम कर सकते हैं, क्योंकि उनके लिए वो आगे जाके प्रॉब्लम बन सकती है। So you need to show them that you are able to take a risk when it's needed to for a certain problem। तो ये ज़रूरी है। बाकी आई डोंट नो, मेरे कुछ ट्विटर कोलीग्स हैं। सुमित, सुमित अगर भाई तू देख रहा है, सुमित का मैं देखता हूँ ट्विटर पे। ही वाज आई थिंक 1 or 2 मंथ्स, 1 या 2 महीने से सुमित भाई अपना वो फ्रंट एंड के फुल टाइम रोल के लिए ढूंढ रहा था। एंड द गुड थिंग आई रियली लव दिस अबाउट हिम इज कि वो सिर्फ कोई जेन्युइन जॉब नहीं ढूंढ रहा था जहाँ पे उसको नेक्स्ट जेएस या एक्सप्रेस में काम करना है। नो, ही वांटेड अ जॉब वेयर ऑफ कोर्स ही इज डूइंग फ्रंट एंड वाली चीज़, आई थिंक फुल स्टैक और फ्रंट एंड, आई एम नॉट श्योर। बट साथ ही साथ ही वांटेड टू हैव सम से। तो दैट शोज़ द गाय इज़ एट द कंपनी। अब वो जिसमें है, कांग्रेट्स बाय द वे सुमित। तो जिसमें वो है, तो दैट शोज़ द गाइज़ कि भाई ये बंदा सिर्फ़ यहाँ बकरा बनने नहीं आया है। मतलब ही इज़ नॉट ओनली हियर टू जस्ट कोड, डेवलप कंपोनेंट्स इन एन ऐप, बट हम जो भी डिसीजंस लेने वाले हैं प्रोडक्ट को लेके या कंपनी को लेके, उसमें उसका से होगा। एंड ऑफ कोर्स इट्स अ गुड स्टार्टअप टू वर्क फॉर, क्योंकि अब आजकल का जो जेन ज़ी तो नहीं कहूँगा, हम लोग तो सब मिलेनियल्स ही हैं। मिलेनियल्स और जेन ज़ी के बीच में हम लोग को ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए जहाँ हमारी रिस्पेक्ट है। हम लोग एस इट्स नॉट द टाइम 30 इयर्स बैक जहाँ पे बॉस के जूते खाने पड़ते थे, बॉस की चाटनी पड़ती थी, टू पुट इट इन सिंपल वर्ड्स। अब ऐसा टाइम है जहाँ पे रिस्पेक्ट इज़ एवरीथिंग, क्योंकि मतलब इट्स एवरीथिंग अबाउट द सोशल मीडिया कल्चर। पॉप कल्चर की स्टडी है पूरी। मैं इस पे इंशाल्लाह मे बी सम लेटर इन द फ्यूचर मैं ज़रूर इसकी बात करूँगा कि क्यों जेन, मतलब ये जेन एक्स, मिलेनियल्स और जेन ज़ी में जो बड़ा डिफरेंस आया है, नॉट ओनली इन माइंडसेट बट इन लॉट ऑफ थिंग्स। सो यही है कि पीपल वांट टू वर्क इन बेटर कल्चर्स दैट रिस्पेक्ट देम फॉर हू दे आर, एंड ये पूरी चीज़। मेरे पास और इतने केसेस नहीं हैं अभी जो याद आ रहे हैं। आगे ऑफ कोर्स अगर आपके पास कोई अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है अप्लाई करने की एंड गेटिंग सेलेक्टेड इन अ जॉब, मेरा मेल है hashmi10@gmail.com, और नीचे डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब पे, फिर ऑन यूट्यूब just comment and I'll talk to you। I'll quickly end the video. Abhi just a few sections left. So there, like if you're talking about the tech hiring situation, I also want to take a look at what skills are need, like skills कौन सी ज़रूरत की पड़ रही हैं, like in demand tech jobs क्या है अभी। So I saw this list. I don't remember all the names, but generally यही है कि generative AI के अराउंड ही काफ़ी लोग, ऐसे लोग ढूंढ रहे हैं जिनको एक्सपीरियंस है। नाउ द फनी थिंग इज
कई लिंक्डइन के एप्लीकेशंस में मैंने देखा है 6 to 8 years ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ जनरेटिव एआई रिक्वायर्ड। लाइक अभी 1 साल ही तो हुआ है यार उसको ऐसा मेन स्ट्रीम में आने में, आप 6 से 8 साल का एक्सपीरियंस पूछ रहे हो। सो यही है, ए आई जनरेटिव ए आई रहेगा। बाकी द टेक्नोलॉजीज दैट हैव बीन एस्टैब्लिश फॉर द पास्ट 5 to 10 years, उनका जितना डिमांड पहले नहीं था ना, अब बढ़ने वाला है। उसका रीज़न है कि अब नए बिजनेस प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, दुनिया और बड़ी हो गई है। इवन आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ द इंटरनेट, जिसको हो गए हैं 50 साल, आई थिंक 50 से 60 साल हो गए हैं, उसके बावजूद भी अब जाके हम बहुत बड़े लेवल पे कनेक्ट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ मोबाइल डिवाइसेस। नॉट ओनली ऑफ मोबाइल डिवाइसेस बट सोशल मीडिया वाली चीज़ है ना, ये जो बिगेस्ट नेटवर्क ऑफ ऑल है, इसके डायनामिक्स ऐसे प्ले आउट हुए हैं कि अब ये जॉब्स जो पुरानी थी, थोड़ी डेवऑप्स हो गया। डेवऑप्स तो खैर काफ़ी नई है इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियल यूसेज एंड क्लाउड कंप्यूटिंग, एआई, मशीन लर्निंग, ये सब जो ट्रेंड वर्ड्स है, बिग डाटा भी ले लो आप, इनका जो अब रिक्वायरमेंट है बढ़ गई पहले से। मैं इनको भेड़चाल नहीं कहूँगा बिकॉज़ आई बी ऑनेस्ट, सबके बस की बात नहीं। जो जो भेड़चाल मैंने इंडिया में देखा है उसमें सी, सी प्लस प्लस, जावा, यही 3 कबूतरों का चलता रहता है। तो आई एम नॉट गोना से कि भाई इधर होने वाला है। बाकी आई वुड सजेस्ट ऑल ऑफ यू कि जो बज़वर्ड्स हैं, पहले तो उन पे अपना स्किल सेट बनाओ। स्किल सेट में सिर्फ़ सीखना नहीं होता है, आपको प्रोजेक्ट्स बनाने होते हैं। एंड आपके पास एटलीस्ट अगर 1-2 अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, प्लीज़ गाइडेड प्रोजेक्ट एक करो मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं। फिर अनगाइडेड कर लिया करो, नहीं तो देयर इज़ नो पॉइंट इन लर्निंग एनीथिंग इफ यू आर नीडिंग अ गाइड टू डू दैट। खुद की थिंकिंग का फिर कोई पॉइंट नहीं बचता है। सो अपार्ट फ्रॉम दिस, इंजीनियरिंग मेनली इस साल का, अगले साल का फोकस इंजीनियरिंग पे ज़्यादा रहेगा, 2024 का। डेवलपमेंट काफ़ी हद तक ऑटोमेट हो चुका है, नो कोड प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं। तो जितने फ्रेमवर्क्स भी खुद को ऐसे अडेप्ट करें कि जनरेटिव एआई टूल्स यूज़ करके वो वेबसाइट बिल्डिंग को आसान कर दें, ऐप बिल्डिंग को आसान कर दें। बट जो कोर इंजीनियरिंग है इन टूल्स के पीछे, वो बहुत डिमांड में होने वाली है। तो आई वुड सजेस्ट दैट एआई सैस का जो भी स्टैक रिक्वायर्ड है, आप उसको पूरा करना स्टार्ट करो। नाउ वेयर टू कम्पीट, वेयर नॉट टू, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है हेडिंग इनटू 2024। एज आई सेड कि अगर आप हल्का सा भी बिलीव करते हो कि यू आर मेंट फॉर ग्रेटनेस, आप काफ़ी सीख के, नई चीज़ें सीख के, एंड आप कुछ कर सकते हो वैल्यूबल अपनी लाइफ में करियर वाइज। So you need to understand where you need to compete and where you do not need to even take a look। भाई मैं इधर देख ही नहीं रहा हूँ। डीएसए, आई कम बैक टू डीएसए एंड कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, ये एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे प्लीज़ आप कंपटीशन बहुत है। बहुत अच्छे अच्छे कोड शेफ के कोडर्स हैं जो आगे जाके अमेजोन गूगल में काम करते हैं। सो अगर आप बहुत ही टैलेंटेड हो तो बाय ऑल मीन्स गो, अच्छा पैसा मिलेगा अगर आप पैसे के पीछे पड़े हो। बट अगर आपको सही में कुछ वैल्यूबल करना है, एआई सिर्फ एआई का भी कुछ कोर वाला पार्ट, एआई की रिसर्च चल रही, उस रिसर्च में शामिल हो, बिकॉज ये रिसर्च आगे जाके काफ़ी रेवोल्यूशनरी होने वाली है। रेवोल्यूशनरी होने वाली है। माइक हिल गया आगे, इसीलिए सॉरी। So you need to understand where you need to step out of, कि इधर नहीं करना है अपन को, यहाँ प्रॉब्लम हो सकती है। एंड टू एंड दिस पॉडकास्ट एपिसोड, आई फाइनली, व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट इन द फ्यूचर। तो अभी तो चलो 5-10 साल का आइडिया लग गया है क्या होने वाला है, बट एज टाइम प्रोग्रेसेस, टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस करेगी, नए स्किल्स आते रहेंगे। अभी रोबोटिक्स पे इतना तवज्जो नहीं है जितना, मतलब है तो लाइक एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं, मतलब रिक्रूटमेंट चल रहा है रोबोटिक्स में भी, स्टार्टअप्स में चल रहा है, फंड वेल फंडेड गवर्नमेंट फंडेड स्टार्टअप्स में काफ़ी रिक्वायरमेंट्स हैं रोबोटिक्स इंजीनियर्स की। बट वी आर टैपिंग ऑन लेवल्स दैट वी हैवंट अंडरस्टूड बिफोर। एआई का जो पावर है, मैं अभी उसको ओवरस्टेट कर भी नहीं सकता, मतलब मैं उसको, आई कांट अंडरस्टेट इट, नीदर ओवरस्टेट इट। वो इतनी बड़ी चीज़ है, मतलब आई कांट ओवरस्टेट इट कि इतना ज़्यादा पोटेंशियल है इस टेक्नोलॉजी में। अगर सही बेंचमार्क्स पे हिट करे, अगर कमर्शियलाइज प्रोडक्शन वाइज अगर ये एस्टैब्लिश हो जाए। अभी बिकॉज द थिंग इज एलएलएम्स का पूरा सीन जो है, LLMs need a lot of GPU and processing power, which is environmentally not good, takes a lot of money from the company. So future में
आगे जाके हो सकता है कोई, जैसे न्यूरो सिम्बॉलिक एआई मैं जिस पे काम कर रहा हूँ रिसर्च में, न्यूरो सिम्बॉलिक एआई एम्स टू सी द वर्ल्ड एज ऑब्जेक्ट्स एंड यूजेस अ न्यूरल नेटवर्क टू एज अ कंप्यूटेशनल सेंस, कि आप ट्रेनिंग उससे करवा दो, बट जो रीजनिंग इन्फेरेंस लॉजिक वाला पार्ट है वो आप सिम्बॉलिक एआई, सब सिम्बॉलिक एआई यूज़ करो। सो फ्यूचर में ये तो भी बहुत छोटी चीज़ है, लुक, कोड एआई ये बहुत छोटी चीज़ हो जाएगी आने वाले टाइम में। there is a big possibility कि हम genetics is, and I'm talking about biotech which is gonna expand a hell lot. बायोटेक्नोलॉजी बहुत बड़ी सेक्टर होने वाली है, एंड जेनेटिक्स इज गोना प्ले अ बिग रोल बिकॉज एंड तब वही है कि अब जैसे फिनटेक था, तो जितने सॉफ्टवेयर वाले थे उन लोगों ने फाइनेंस को स्टडी करना शुरू किया, तो वो फाइनेंस और टेक मिलके फिनटेक बन गया। एंड आपके जितने बड़े पेमेंट वेंडर्स हैं, यूपीआई एप्स, ये सब फिनटेक का पार्ट है, या पेमेंट गेटवेज, ऑल ऑफ दैट इज फिनटेक। एंड एन इंजीनियर नीड्स टू अंडरस्टैंड हाउ ट्रांजैक्शंस गो, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कैसे किया जाता है। वैसे सिमिलरली बायोटेक में भी यही होगा कि इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट राइटिंग जेनेटिक कोड, तो वहाँ पे मेरा कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड काम आएगा। इवन मैं बायोलॉजिस्ट हूँ ना, लेट्स से, सो वहाँ पे अगर मैं कंप्यूटर साइंस पढ़ता हूँ, तो उस चीज़ का नॉलेज जेनेटिक कोड को अंडरस्टैंड करने में, कि जीन पेयरिंग्स जो होती हैं, एटीजीसी जो बॉन्ड्स रहते हैं, नॉट श्योर तो वो होता कैसे एग्जैक्टली, जेनेटिक्स का क्या रोल है, डीएनए क्या होता है, वो मतलब बेसिक आप समझ जाओ ना, सो यू कैन अंडरस्टैंड कि भैया ऐसे काम कर। सो गोइंग इनटू द फ्यूचर, टेक और कोड थोड़ा कम होने वाला है, लाइक टेक सेक्टर का जो एक्सपेंशन होगा मेनली एनर्जी एंड बायोलॉजी, ऐसे रिसोर्सेज वाली चीज़ों में और बढ़ने वाला है। एआई पॉइंट के बाद गिरने लग जाएगा। उसका रीज़न ये है कि विद द करंट स्टेट ऑफ थिंग्स पॉलिटिक्स बहुत बड़ा इसमें अफेयर होने वाला है। एंड अभी रशिया से तो ऐसा कुछ बड़ा दिख नहीं रहा, मेनली सब यूएस में ही हो रहा है, बट इज़राइल इज स्टेपिंग अप एंड इज़राइल इज स्टेपिंग अप बैड, मतलब इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी। सो पॉलिटिक्स का है, बाकी जेनेटिक्स में भी ये प्रॉब्लम आएगी, अगर कहीं कल को कोई बंदा बोलता है कि वी हैव फाउंड अ वे टू सॉर्ट ऑफ अपलोड कॉन्शियसनेस इनटू अ कंप्यूटर, तो मैं तो खैर उसमें बिलीव नहीं करता फॉर सम फ्यूचर लेटर वीडियो, बट वहाँ पे पॉलिटिकल इम्प्लिकेशंस बहुत होंगे कि इसको अगर करा जा सकता है तो क्या करना सही रहेगा, वहाँ पे फिर वो मोरालिटी एथिक्स की बात आ जाती है, साइंटिफिक एथिक्स की। तो ये सब फ्यूचर में बहुत होने वाला है, बट इंडिया की मैं अगर बात करूँ ना, अगले 5-10 साल में तो चलो नॉर्मली चलने वाला है, अगर टेक्नोलॉजी चलती है जैसे चल रही है। इफ़ नॉट, अगर मैं अगले 20-30 साल की बात करूँ, 20-30 साल बाद, तो जैसे एक टाइम पे एआई रिसर्च एमआईटी से ही, मतलब मेनली सब बड़ी चीज़ें स्टार्ट हुई अमेरिकन यूनिवर्सिटी से, एंड दिस गोज़ वे बैक इन 1970s 80s, जब पहला डार्टमouth कॉन्फ्रेंस हुआ था, जिसमें कुछ साइंटिस्ट गैदर हुए थे, एलन न्यूवेल, जॉन मैकार्थी, हर्बर्ट साइमन, या, तो इन लोगों ने एक एआई का सेक्टर क्रिएट किया था, उसके फाउंडेशंस दिए थे। आने वाले समय में, एंड इंडिया को आते-आते एआई में अब हो गया, मतलब 50 साल हो गए, 50 साल भी नहीं, आप चलो 40 इयर्स बोल लो। इंडिया इज़ नाउ सॉर्ट ऑफ लीडिंग इन द एआई सेक्टर। अब ऐसी टेक्नोलॉजीज़, ब्लॉकचेन जैसी चीज़, अब ब्लॉकचेन में भी है काफ़ी, बट अगर मैं बोलूँ कल को ऐसी टेक्नोलॉजी आती है tomorrow, which say originates in Israel or the US or Germany or China, in fact, or even China. जापान और साउथ कोरिया भी ले लो, ये सब बड़े वाले कंट्रीज। तो इंडिया के लिए ये चैलेंज रहेगा कि हम उस टेक्नोलॉजी को अंडरस्टैंड करते एंड उसको एक्सपैंड करते हैं। इंडिया में कितना टाइम, कितने रिसोर्सेज लगेंगे, इतनी पहले दिक्कत नहीं आएगी, बिकॉज ऑब्वियसली बैक इन द डेज हम इंडिपेंडेंस के बाद ही निकले थे एंड इतना पैसा नहीं था। पूरी नेशन सफ़र करी थी आफ्टर व्हाट द ब्रिटिश डिड टू अस, डिवाइड एंड कॉन्कर। सबने फिर नेहरू को, इन लोगों को ब्लेम करना शुरू कर दिया। दे जस्ट कुडंट अंडरस्टैंड। खैर मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं आई एम न्यूट्रल इन दिस, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड इस कि ये जो पैसा इतना लगा, वो पहले फोकस होना होना था इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे। इतने बैकवर्ड ग्रुप्स थे, उन सबको समझना था, तो इट वाज अ बिग चैलेंज फॉर देम। खैर अब इतना चैलेंज नहीं आएगा, वी हैव गुड, लाइक पर कैपिटा इनकम हमारी पहले से तो काफ़ी बेहतर हुई है। अपर और मिडिल क्लास में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हुई है, लोअर में इनफैक्ट लोअर में और हो गई है। अपर और मिडिल में कम ग्रोथ हुई है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, बट उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा हो गया है, और वही लोअर क्लास में और बुरा होते जा रहा है।
सो इंडिया इज सॉर्ट ऑफ हेडिंग, होपफुली अल्लाह ना करे बट हम पाकिस्तान की टूवर्ड्स ऐसे नहीं जाएं. दैट्स अ डेड नेशन राइट नाउ इफ दे डोंट चेंज एनीथिंग. In terms of technology establishment and owning it, India will step up quickly because of, एक तो एक्सपेक्टेशंस रहती है कि हमारा नेशन है तो हमको वहाँ तक लाना ही है किसी भी हालत में. एंड हमारे इंटरेस्ट में अगर सर्व होता है तो ऑब्वियसली हम उन टेक्नोलॉजीज़ को ओन करने में पूरी जान लगा देंगे. सो टेक हायरिंग सीन इज़ गोइंग टू बी pretty much the way it has been. Obviously कल्चरल चेंजेस आ रहे हैं. एज आई टोल्ड यू रिस्पेक्ट वाली चीज़ है. अब कंपनीज ह्यूमन माइंड, इनफैक्ट मेंटल हेल्थ को और ज़्यादा प्रायोरिटाइज कर रहे हैं. इट्स लाइक कंपल्सरी थिंग फॉर देम, सो दे कांट दे कांट बार्गेन ऑन दैट. और स्किल सेट्स अपने इम्प्रूव करो, नेटवर्किंग अच्छी करो, रेज्यूमे खैर ये तो बात की चीज़ है. पर्सनालिटी डेवलपमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट. लीडरशिप एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स करो, टॉक टू पीपल. एंड जॉब की टेंशन इतनी मत लो, आई बी ऑनेस्ट. अगर आप स्किल्स अपनी इम्प्रूव करोगे, काबिलियत, अपना एक पर्सनल ब्रांड अच्छा बना लोगे ना, विच आई वुड लव टू डू इन अ फ्यूचर एपिसोड अबाउट पर्सनल ब्रांडिंग करा कैसे जाता है. बट टेक हायरिंग सीन इज गोइंग टू बी almost similar to what it has been in the past 5 to 10 years. 5 years, 10 years तो नहीं, उतना ही रहने वाला है. फ्रेशर्स को मेरा यही आई डोंट नो एडवाइस है कि भैया प्लीज़ कॉलेज में मतलब हाँ, बात करो लोगों से, शर्माओ मत. और पढ़ाई से कुछ नहीं होगा. यू हैव टू डू इट ऑन योर ओन. नो टीचर, नो प्रोफेसर इज़ गोना हेल्प यू, नीदर योर फ्रेंड्स. खुद करो, खुद सीखो चीज़ें. एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट. चलो गाइस, लेट्स एंड इट हियर. फर्स्ट एपिसोड ऑफ बीसीएस कोडेक्स. बहुत कुछ है मेरे पास बात करने को. ओके गाइस, चलो, पीस आउट.